Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries, but you can call us on 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. But do not forget to prefix 011 if you are calling from out of Delhi. Well, I am Nishit Kumar, and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar. And to answer our listeners' queries, today we are joined in by a financial expert in our studios, Yamini Agarwal. Yamini, welcome to the show. Thank you. नमस्कार। मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। आज सोमवार है और आज कार्यक्रम में हम आपके सवाल भी शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक या शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम में किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे और प्रश्न पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2371-7106 और हमारा तीसरा नंबर है 2371-7117। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है निशित। The headlines: domestic stocks declined more than 1% in the afternoon trade amid weaknesses in the global share markets. Sensex falls below 56,600 points and Nifty slips below the 17,000 mark. The rupee weakens 21 paise against the US dollar in the afternoon trade, and Brent crude prices hover around $102 per barrel. घरेलू शेयर बाजार में लगभग 1% की गिरावट। वैश्विक शेयर बाजार के कमजोर रुख के कारण सुस्ती देखी गई। सेंसेक्स 56,600 अंक के नीचे और निफ्टी भी लुढ़ककर 17,000 के स्तर के नीचे आकर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे कमजोर और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $102 प्रति बैरल तक पहुंची। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में आज लगभग 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। वैश्विक बाजार में कमजोर रुख के कारण घरेलू शेयर बाजार में ये सुस्ती देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 56,600 अंक के स्तर के नीचे आकर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 17,000 अंक के स्तर के नीचे रहा। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 1.08% की गिरावट से यानी 617 अंक नीचे आकर 56,580 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.27% नीचे आकर 218 अंक की गिरावट के साथ 16,954 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 1.88% नीचे आ गया, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक भी 1.88% लुढ़क कर बंद हुआ। The Sensex and the Nifty today plunged more than 1%. Domestic stock indices declined amid weak cues from global share markets. The Bombay Stock Exchange Sensex closed below 56,600 points, while the Nifty at the National Stock Exchange ended below the 17,000 level. The Sensex lost 617 points or 1.08% to finish at 56,580. The Nifty also tumbled 218 points or 1.27% to settle at 16,954. And in the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap fell 1.88%, while the small-cap index ended 1.88% down. In the Sensex pack, 7 companies logged gains, while 23 declined. HDFC Bank was the top gainer as it added 0.8%, followed by ICICI Bank, which gained 0.7%. HDFC climbed 0.3%. On the other hand, Tata Steel plunged 4.5%, Tech Mahindra tumbled 2.8%, and NTPC lost 2.7%. In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, all indices witnessed losses. Metal and Realty index plunged 3.7%, energy tumbled 2.7%, and telecom fell 2.6%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 980 companies gained, while 2,558 fell. Shares of 136 companies remained
unchanged. And now we are joined in by our first caller, Bhaumik from Kolkata. Bhaumik, can you hear us? Bhaumik, could you please switch off your radio and then call? You can. Yes. Yeah. Please switch off your radio. ठीक है जी, हिंदी. हाँ जी, जी आपका प्रश्न पूछिए. ओके. भौमिक जी, आप अपना रेडियो बंद कर लें प्लीज. ओके. हेलो जी, आपका प्रश्न क्या है? हेलो जी हाँ, बोलिए. हम सुन पा रहे हैं आपको. आप अपना सवाल पूछिए. मेरा क्वेश्चन, व्हाट इज इंडेक्सेशन? व्हाई इंडेक्सेशन इज रिक्वायर्ड? हाउ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉस इज कैलकुलेटेड? प्लीज एक्सप्लेन. जी देखिए, जब आप कोई भी कैपिटल असेट कोई भी वस्तु बेचते हैं तब आपको एक गेन होता है जब उसकी प्राइस उसकी कॉस्ट से ऊपर होती है. तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म. अगर वो आप 36 महीनों से कम के दौरान बेचते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है. अगर उसके बाद बेचते हैं तो जो है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं. अगर ये सिक्योरिटीज के अंदर करते हैं तो 12 महीने के बाद बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है. 12 महीने से पहले करते हैं तो शॉर्ट टर्म होता है. जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जिस चीज को आपने जिस समय पे खरीदा होता है, उसको प्रेजेंट समय के हिसाब से के मूल्य पे लाने के लिए इंडेक्सेशन किया जाता है, जिसके साथ एक मल्टीप्लायर यूज किया जाता है. इंडेक्सेशन का प्रोसेस पुरानी कॉस्ट को लेटेस्ट करंट कॉस्ट तक लाने की कोशिश होती है, ताकि जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो तो जब आप अपना प्राइस को जो आपको मिली है उससे सब्ट्रैक्ट कर सके अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. जी, अतानु शाह जुड़े हैं कोलकाता से हमारे साथ में. हेलो. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग मैडम. आई एम अतानु फ्रॉम कोलकाता. माय क्वेश्चन फर्स्ट वन इज, sir, do you expect our commodity price should be balanced? Thank you. जी देखिए, जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करती हैं, और जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती जाएगी और डिमांड भी बढ़ेगी तो उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि कितनी मैच कर पाती है सप्लाई डिमांड को. अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें सप्लाईज वापस रिकवर कर रही हैं और डिमांड क्योंकि पेंट अप रही है कोविड के दौरान के बाद, तो वो जो है बढ़ी हुई हैं. कुछ प्राइसेस इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि फ्यूल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, जिसका सीधा असर जो है कमोडिटी प्राइसेस पे भी पड़ रहा है. तो वो प्राइसेस अपने आप जो है मार्केट में आते आते बढ़ जाती हैं. Well, our next caller is Alok from Delhi. Alok, welcome to the show. या थैंक यू. मेरा सवाल है, ये प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक में क्या डिफरेंस होता है? काफी सुनने में आता है ये, तो आप बता सकते हैं प्लीज. प्राइस टू अर्निंग रेशियो होती है कि जो स्टॉक मार्केट की जो स्टॉक की प्राइस होती है वो अर्निंग्स के मुकाबले में क्या रेशियो रखती है. इसका मतलब होता है कि कितना गुना मार्केट आपकी जो अर्निंग्स है उसको वैल्यू कर रही है. ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब होता है. और जहां पे आपने प्राइस टू बुक रेशियो कहा, वो बुक वैल्यू पे जो स्टॉक है उसके मुकाबले प्राइस कितनी गुना ज्यादा है वो रेशियो वो दिखाती है. मुंबई से सचिन है. हेलो सचिन. सचिन, आपका प्रश्न क्या है? या मैडम, मैंने ना 3-4 साल पहले एक प्राइवेट बैंक पे अकाउंट ओपन किया था. उस टाइम उन्होंने 0 बैलेंस बताया था, लेकिन 6 महीने के बाद उसका मिनिमम डिपॉजिट जो रहता है ना वो 25,000 कर दिया, जिसकी वजह से मैंने ट्रांजैक्शन करना बंद कर दिया है. तो अभी वो डोरमेंट कंडीशन में है. लेकिन अभी वो बैंक का जो स्टेटमेंट आता है ना उसमें वो मिनिमम बैलेंस के चार्जेस लगा के कुछ 12-14 हजार रुपया लगा बता रहे हैं मुझे. जी देखिए, आपने जब अकाउंट खोला होगा, हो सकता है उसके साथ आपने एफडी रखी हो, तो वो कभी कभार स्थिति ऐसी होती है कि कुछ बैंक्स
जो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट होता है 25,000 उसे हटा करके जीरो बैलेंस कर देते हैं अगर आपने एफडी मेंटेन कर रखी है उनके साथ। जब वो आप एफडी तोड़ देते हैं तो वो मिनिमम बैलेंस चार्जेस उस पर लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आपने फॉर्म भरा होगा, अगर उस पर वो जीरो बैलेंस अकाउंट ही था तो आप उन्हें कह सकते हैं कि आपके वो सारे चार्जेस रिवर्स किए जाएं। क्योंकि फॉर्म भरते समय हम ध्यान नहीं रखते और जहां जहां वो क्रॉस करते हैं उसे ब्लैंक छोड़ देते हैं और वहीं पे साइन कर देते हैं। इसकी वजह से हम अपना जो है राइट खो देते हैं कोई भी चार्जेस के ऊपर अगर हमारे पास उसकी कॉपी नहीं मेंटेन्ड होती। तो मैं यही कहूंगी कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देखिए, उस फॉर्म की कॉपी आप बैंक से मांग सकते हैं और उसके बेसिस पे आप अपने चार्जेस रिवर्स करा सकते हैं। Right. We have our next caller, Hasmukh from Mumbai. Hasmukh, can you hear us? Yeah. गुड इवनिंग माथिर मंत्रा। Good evening. सबसे पहले मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो फेड के कुछ न्यूज आए हैं कि कुछ इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं और अपनी बैलेंस शीट को डाउन साइजिंग कर रहे हैं, तो भारतवर्ष में अपनी आरबीआई उसको किस तरह से काउंटर करेगी और उसका इफेक्ट हमें किस तरह से देखने मिलेगा अगले 1-2 महीने के अंदर? थैंक यू जी। देखिए, जो फेडरल रिजर्व बैंक कोशिश कर रहा है वो अपनी इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने की, जिसे हम टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। पहले अकोमोडेटिव मॉनेटरी स्टांस था जिसमें मनी सप्लाई को ज्यादा से ज्यादा इजीली अवेलेबल कराया जाता है लोगों तक। क्योंकि इन्फ्लेशन काफी हद तक हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा है यूएस के, और उसकी वजह से जो फेडरल रिजर्व है उसने अपनी पॉलिसी स्टांस में चेंज किया है अकोमोडेटिव से न्यूट्रल पे, और उसको मॉनेटरी पॉलिसी को जो है टाइटन किया है, जिसके तहत इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, जो भारत के लिए भी एक कॉम्पिटिटिव पोजीशन रखता है क्योंकि एफआईआईज की मूवमेंट उनकी तरफ हो जाती है। इसलिए भारत भी कुछ समय के बाद अगर आप देखेंगे तो अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगा ताकि इंटरनल जो डोमेस्टिक मार्केट है और जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सके। नेक्स्ट कॉलर रत्नाकर फ्रॉम मुंबई। रत्नाकर, can you hear Hello. me? Yeah, Ratnakar, welcome to the show. हेलो, गुड इवनिंग। Good evening. मेरे 2 सवाल है। एक सवाल है कि एफएमसीजी एंड ऑयल कंपनी के शेयर अभी लेना किफायतशीर रहेगा क्या, ये है। और दूसरा है कि इनकम टैक्स साइट पर जो एआईएस और टीआईएस ऐसे 2 स्टेटमेंट दिखते हैं, तो ये दोनों में क्या फर्क है? जी, आप स्टेटमेंट का नाम फिर से रिपीट कर सकते हैं? जी, एफएमसीजी और ऑयल कंपनीज अच्छी मार्केट है कोविड के दौरान और अच्छा इन्होंने प्रदर्शन भी किया है, पर माना जा रहा है क्योंकि ये डिफेंसिव स्टॉक्स में रहेंगे, इनका प्रदर्शन आने वाले समय में जब मार्केट्स पूरी तरीके से रिकवर कर जाएंगी और ग्रोथ पैटर्न पे होंगी, थोड़ा कम रहेगा। Yeah, Yamini, we've been seeing this slide in the markets for the past few sessions now, and also now we have been witnessing the slowdown in other Asian economies, other Asian markets as well, and of course this COVID variant is also coming up big time now. Especially we saw in Italy and of course this Shanghai and China thing also coming up. How do you see this? Well, overall, there has been a rise in the COVID cases both in Italy and China, and because of which there has been subsequent lockdowns as there is a zero COVID policy in China, which will affect the overall demand in the economy as well as the supply disruptions in the economy. जी, इस बीच में खजुराहो से जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हेलो जितेंद्र। जी नमस्ते। जी नमस्ते, आपका प्रश्न पूछिए। यामिनी मैम को भी नमस्ते। 2 क्वेश्चन है मेरे मैम। जी नमस्ते। मैम, पहला क्वेश्चन है, जो एसजीएक्स निफ्टी की जो नेटवर्थ होती है वह भारतीय बाजार की नेटवर्थ में शामिल होती है क्या, इसे कंट्रोल कौन करता है? दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे पोर्टफोलियो में एक्सपर्ट का मानना है कि 10% गोल्ड होना चाहिए, बाकी करेंसी एंड कमोडिटी का कितना हिस्सा होना चाहिए? थैंक यू। जी, निफ्टी जो है वो आपका 50 स्टॉक का इंडेक्स है और जो स्टॉक्स के वैल्यूएशंस होंगी उसके ऊपर उसका जो है नेटवर्थ निकलेगा, और मार्केट वैल्यूएशंस में क्योंकि ये 50 स्क्रिप्स होल्ड करता है उसकी वेटेज उतनी ही रहती है, पर क्योंकि ये एक मेजर इंडिकेटर होता है मार्केट मूवमेंट को देखने के लिए, इसलिए इसी के थ्रू बेंचमार्क करते हुए देखते हैं कि मार्केट बढ़ी या घटी। जहां तक पोर्टफोलियो का सवाल है, क्योंकि पोर्टफोलियो जो है बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज को लेकर के बनता है, उसमें माना जाता है क्योंकि गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट रहती है और काफी बढ़ती हुई इन्वेस्टमेंट रहती है, उसका कुछ पोर्शन रहना चाहिए।
डिपेंड करता है कि आप कितने रिस्क अवर्स हैं, जिसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपका पोर्टफोलियो कैसा बनना चाहिए, कितना उसमें डेट होना चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए और कितना गोल्ड होना चाहिए। अगर आप रिस्क अवर्स हैं तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट डेट में जाती है, अगर आप रिस्क लविंग है तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में जाती है। माना जाता है 55% डेट में रखा जाए ताकि सेफ उसमें रहे, और उसके कुछ पोर्शन जो है 25 to 30% इक्विटी में रखा जाए और 10% के आसपास आपके किसी फिजिकल एसेट जैसे गोल्ड वगैरह में रखा जाए। यामिनी जी, अभी जो हमारे कॉलर थे जिन्होंने बैंकिंग से रिलेटेड हमसे एक प्रश्न पूछा था, तो मैं ऐसे ही जनरल पूछना चाह रहा हूं कि लोग अकाउंट तो खोलते हैं, कई बार उन्हें ये लगता है कि बैंक जो हमें ऑफर दे रहा है उस वक्त तो फ्रूटफुल लगता है, बाद में उन्हें थोड़ा टफ लगने लगता है, उन्हें अपना नुकसान नजर आता है उसमें। जी, ऐसे बहुत समय होता है कि कभी कभार बैंक कहता है कि आप अभी हमारे साथ अकाउंट खोल लीजिए या आप हमारे साथ ये एफडी खोल लीजिए, हम आपको ये दे देंगे, पर वो सुविधा पे नहीं जाना चाहिए। उस समय उसको पूरी तरीके से आगे समय के लिए भी इवैल्यूएट करना चाहिए, और कोई भी कागज आप बैंक को दें उससे उसके साथ साथ अपनी एक कॉपी जरूर रखें और ब्लैंक कागजों पे साइन ना करें। और इसमें एक चीज ये हमें सुनने में आती है कि अगर बैंकिंग से रिलेटेड कोई समस्या होती है तो ऑम्बुड्समैन के पास हमें जाना चाहिए, तो वो किस स्थिति में जा सकते हैं और आगे इस तरह की जो समस्या है उनका सोल्यूशन हम कैसे पा सकते हैं? जी, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हों और आपके पास सही जानकारी हो, जिसके तहत आप जो है बैंक्स ओबड्समैन में जा सकते हैं, आरबीआई ओबड्समैन में जा सकते हैं और कंप्लेन कर सकते हैं अगर कोई बैंक अनफेयर प्रैक्टिस आपके साथ अडॉप्ट कर रहा है। जैसे आपको जीरो बैलेंस अकाउंट बोला गया हो खोलते समय, पर आपको कोई और अकाउंट देख करके वो खोला गया हो। But we must understand that first of all we need to reach the grievance mechanism of the bank itself, and only after a certain period, I think it's 30 days or something, maybe only after that you can go ahead and proceed and rather approach the banking ombudsman, and then the next step I think is approaching the RBI. So first of all we'd like to share this with our listeners that not in the first instance you should approach the banking ombudsman. First of all, you must approach your branch, the home branch, and then the grievance cell of the bank itself, maybe the complaint, whatever it is. और इसमें लगभग एक महीने का समय लगता है। Yeah, of course, you must wait for the 30 days time or so, and then only after that we should approach. आपको ब्रांच मैनेजर्स को पहले अप्रोच करना चाहिए, फिर रीजनल मैनेजर को, फिर चीफ मैनेजर को, और फिर चेयरमैन को बैंक के, और फिर अगर नहीं होता तो बाकी किसी बाहर की एजेंसी को अप्रोच करने चाहिए। There must be a hierarchy. We must not jump the gun. And now we are headed for a quick commercial break, but do stay tuned in because we have lots coming up on the other side. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से मार्केट मंत्रा में। और अब नजर डालते हैं रुपए पर, तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 21 पैसे कमजोर हुआ। घरेलू मुद्रा बाजार में 76 रुपए 69 पैसे प्रति डॉलर पर यह रहा, और 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला सूचकांक दिन के कारोबार में 0.28% की बढ़त से 101.5 पर था। और वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में नए सिरे से बढ़ती चिंता और ब्याज की दरों के प्रभाव के बीच में निवेशकों ने आज जोखिम भरी परिसंपत्तियों की बिकवाली की है। बीजिंग में फिर से लॉकडाउन लगने की संभावनाओं के कारण एशियाई बाजारों को 1 महीने से अधिक के समय में अपने सबसे खराब सत्र से गुजरना पड़ा। चीनी शेयर बाजार 2020 के निचले स्तर तक पहुंच गया और अमेरिकी शेयर बाजारों में भी लगभग 2.5% का नुकसान देखा जा रहा है। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक आज 5.1% लुढ़क गया और हांगकांग के हिंग सेंग में 3.7% की गिरावट आई। जापान का निक्केई 225 1.9% नीचे आ गया। वहीं दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.8% की सुस्ती के साथ रहा, जबकि सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.6% नीचे आकर बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजारों में भी आज दिन के कारोबार में गिरावट का रुख रहा। लंदन का FTSE 100 और फ्रांस का कैग 2.2% नीचे आ गए। वहीं जर्मनी का डेक्स 1.8% लुढ़क कर कारोबार कर रहा था। We are joined in by Gurunath from Thane. Gurunath.
जी सर नमस्कार। नमस्कार गुरुनाथ जी। यजनी मैम को भी नमस्कार। जी नमस्कार। मैम मेरा सवाल है, ये जो अभी देख रहे हैं हम कई दिन से, ये 55 और 60 के बीच में जो अपना मार्केट जो देख रहे हैं हम, मैडम इसका क्या कारण हो सकता है? इसका इंटरनेशनल और इंटरनेशनल ये जो रशिया का और ये जो चल रहा है उसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, और ये जो अमेरिका ने जो अनाउंसमेंट करके जो इंटरेस्ट रेट जो अभी तक होल्ड पे रखा है कि उन्होंने जो बढ़ा दिए? थैंक यू मैम। जी देखिए, जो स्थिति बनी हुई है मार्केट में उसका प्रमुख कारण है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क है, जिसमें यूक्रेन और रशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस काफी हद तक बढ़ गई हैं, जिसका सीधा असर इन्फ्लेशन के ऊपर पड़ रहा है संसार भर में और इंडिया में भी। उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफी एंशियस हो गए हैं। फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं और वो आगे भी बढ़ाने वाला है, जिसके तहत हमने ये भी देखा है कि जो FIIs हैं उन्होंने अपनी सेलिंग जो है शुरू कर दी है, और सेलिंग की वजह से भी मार्केट गिर रहा है। यही कुछ प्रमुख कारण है। एक और कारण जो दिख रहा है वो है कोविड का बढ़ना, जहां पे हम देख रहे हैं कि दिल्ली में केसेस बढ़ गए हैं, और भी जगहों पे जैसे चाइना है और इटली है वहां पर भी कोविड के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी, गुरुग्राम से अनिल भट्ट है हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो। नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम। जी नमस्कार। आपका जो प्रोग्राम है वो एक कॉमन मैन के लिए बहुत यूजफुल है, तो मेरा इसमें एक सवाल है और एक रिक्वेस्ट है। जी पूछिए। सवाल ये है कि जब हम म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन करते हैं तो उसमें जो NAV होता है वो कई बार मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम करें तो नेक्स्ट डे का NAV होगा। ये तो मतलब क्या आपका सजेशन क्या है कि मैं जो NAV देखूं वही मुझे रिडेम्पशन में मिले, तो किस टाइम पे हमें करना चाहिए रिडेम्पशन? सेकंड मेरा जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि आम आदमी को जो आप गोल्ड का रेट बताते हैं वो फ्यूचर का बताते हैं, तो आम आदमी को रहता है कि आज मैं अपना गोल्ड अगर जाके बेचता हूं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। तो अगर वो वाला रेट आप बताएं 22 कैरेट का, तो मेरे ख्याल में एक जो आपके श्रोता हैं उनको ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू। जी, आप अगर मार्केट आवर्स के अंदर अंदर बेचेंगे तो जो NAV आप मांग रहे हैं वही मिलेगा। अगर आप ट्रेडिंग आवर्स के एंड के टूवर्ड्स में करेंगे और वो ट्रेड नहीं होता तो आपको अगले दिन का NAV मिलेगा। And also we'd like to add here something that I think that the cutoff time is around 3 p.m. If I'm not wrong, Yamini, for a particular day's NAV's timing. If you invest or if you say do any lump sum or an SIP until 3 p.m., you would be getting the NAV of the same day. If it is done beyond 3 p.m., last half an hour. Trading. No, it's actually the cutoff time. I think the 3 p.m. is the cutoff time. That is the threshold time. If you invest till 3 p.m., you'll be getting the NAV of the same day. If it is done beyond 3 p.m., then you would be getting the NAV of the next day. NAV is actually, I think, calculated at the time of 3 p.m. every day. It depends. And as far as the suggestion was concerned of giving the current rates of 22 karat gold or something, so it is actually different in different cities. And future, we talk about the future thing. It gives you a trend for traders here, and not that and also the customer too should think of it. And every city has a different kind of offer rate for every day. जी, और सोने की बात है तो सोने पर थोड़ा नजर डालते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून के वायदा कारोबार में सोना आज 670 रुपए की गिरावट पर रहा और ये 51,590 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। वहीं चांदी मई के वायदा कारोबार में 1,655 रुपए लुढ़ककर 64,890 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। वैश्विक बाजारों की बात की जाए तो सोना सुस्ती के साथ $1,907.70 प्रति औंस के स्तर पर रहा, जबकि चांदी आज दिन के कारोबार में ऊपर आकर $23.70 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई। और गोपाल है हमारे अगले कॉलर मुंबई से। हेलो।
जी हाँ नमस्कार जी, मार्केट मंत्री जी नमस्कार सर। मेरे 2 सवाल है। मेरे सवाल सुन लीजिए, मैं आपको जवाब रेडियो पे सुनता हूँ, मोबाइल में मेरा बराबर जवाब नहीं आता है जी। पहला सवाल ये है कि ये मेरा पीएनसी बैंक से मर्ज हुआ यूनिटी बैंक से, तो उन्होंने क्लेम अमाउंट से जो मेरा ये 21-22 इंटरेस्ट दिया था, उसमें ये लोग ने 8% का 5% इंटरेस्ट रिवाइज कर दिया, ऑटोमेटिक काट दिया बिना ये ऐसा करते हैं कि इंटरेस्ट देने के बाद भी इंटरेस्ट काट दिया। पूरे 5 लाख का जो लोग ने दिया रिफंड, तो उसका 5 साल का 5 लाख के ऊपर 8% इंटरेस्ट था, उसने 5% इंटरेस्ट रिवाइज कर दिया, तो क्लेम अमाउंट से काट दिया। तो उसका कुछ रिफंड होने का कुछ होप है? पहले ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है, जो मार्केट है अक्टूबर से एक्चुअली देखा जाए तो मार्केट की कंडीशन वर्स्ट है, और जब कोविड में जब जो मार्केट 2 साल पहले गिरी थी, आज के तारीख में कई स्टॉक है जो उसके भी नीचे चले गए, तो उसमें इन्वेस्टर क्या करे? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मेरे सारे इक्विटी पूरी वर्स्ट कंडीशन में, मैं करूँ तो क्या करूँ? जी देखिए, जब बैंक्स का मर्जर होता है तो वो कुछ कंडीशंस पे होता है और उन कंडीशंस को वो मर्ज्ड एंटिटी फॉलो करती है। जो आपके प्रीवियस ईयर्स के इंटरेस्ट होता है उसमें वो चेंजेस नहीं कर सकते, पर जो आपके करंट ईयर के जो इंटरेस्ट होता है मर्जर के बाद के, उसके अंदर वो चेंजेस कर सकते हैं और वो उसमें आपको उसी रेट के हिसाब से देंगे जिस रेट पर आपकी एफडी फिर बुक्ड होगी। जहां पे अक्टूबर में आप बात कर रहे हैं 2 साल पहले से लेकर के अब तक, ये जरूर देखिए कि आपको नोशनल लॉस हो रहा है या रियल लॉस हो रहा है। और दूसरा आप ये भी देखें कि जिन स्टॉक्स में आप निवेश कर रहे हैं क्वालिटी ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं या नहीं, आगे बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं या नहीं, कि उनके पास रिजर्व्स एंड सरप्लसेस हैं, कोर बिजनेस है आगे बढ़ने के लिए और उनमें ग्रोथ है या नहीं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है और लिक्विडिटी कैसी है। अगर आपको वो प्रॉमिसिंग स्टॉक्स लगते हैं तो आप उनमें बने रहें तो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको रियल टाइम में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो गया है और वो आपके लिए काफी है, तो आप निवेश से बाहर आ सकते हैं। And moving on to some other stories, oil prices today fell more than 4%. The crude prices slumped to about 2-week lows, extending last week's decline as concern grew that prolonged COVID-19 lockdowns in Shanghai and potential increases to the U.S. interest rates would hurt global economic growth and oil demand. In the intraday trade, Brent crude was trading around $101.90 per barrel, while the WTI crude prices were at $97.70 per barrel. Well, Yamini, oil is behaving in a sing-song manner. One day we see it's crossing 110, 111, even further, and now just last week or so it came down to around 95. Now it's 101. How do you see this? Well, overall, the supply and demand of the oil determines the price. So whenever there are chances that there is a disruption in the supply, we've seen the oil prices continuously rising. Since there are lockdowns in China and Italy, as you said earlier, because of the rising cases in COVID, the demand for oil has come down, so which has further added to the overall market in terms of the prices. So where we see the prices have come down primarily because the demand has lowered down. यामिनी जी, अभी हमने देखा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी जो हमारी गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में बनने जा रही है, इसमें अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के साथ में टाई अप करने और यहाँ पर उन्हें एस्टेब्लिश करने के लिए बात कही है। तो ये आगे फ्यूचर में इन्वेस्टर्स को कैसे मतलब अट्रैक्ट करेगा? जी देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ROIs, और अगर वो ROIs प्रॉमिस करते हैं और आगे प्रॉमिसिंग रहते हैं तो इन्वेस्टर्स उसके तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं। Yeah, and very quickly, Yamini, for the benefit of our listeners, what sectors do you suggest them to invest in the short term? IT and pharma continue to be good sectors. Also, they can invest in auto as a good sector, and FMCG sectors will remain good sectors. जी यामिनी जी, मार्केट मंत्रा में शामिल होने के लिए, हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, उन्हें जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और श्रोताओं, चलने से पहले अंत में एक बार मुख्य समाचार फिर से। घरेलू शेयर बाजार में लगभग 1% की गिरावट। वैश्विक शेयर बाजार के कमजोर रुख के कारण ये सुस्ती देखी गई। सेंसेक्स 56,600 अंक के नीचे और निफ्टी भी लुढ़ककर 17,000 के स्तर के नीचे आकर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे कमजोर और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $102 प्रति बैरल तक पहुंची। डोमेस्टिक स्टॉक्स
declined more than 1% in the afternoon trade amid weaknesses in global share markets. Sensex falls below 56,600 points. Nifty slips below 17,000 mark. Rupee weakens 21 paise against the US dollar in afternoon deals, and Brent crude prices hover around $102 per barrel. That's it in this edition of Market Mantra. Till we meet again, goodbye. Market